Yeah. So yeah, so last time I think I had posted the link of my YouTube channel where I had posted all the recordings. So today's recording also will be posted on YouTube. So I would request any one of you after the class can like click on the link and tell me if they are able to access the classes. Because first I had put the classes as unlisted videos, but then I made it public. So I think there should be no problem for anyone to access the classes. So yes, I was not in favor of putting on the classes on YouTube, but then I because I wanted to encourage participation. But then some of the devotees told me that they really want to come, but they have some devotees told me, but they have Bhakti Shastri at the same time and many other things on going on. So, and even I was facing problem using Google Drive for recording of the class. So I decided to put it on YouTube. So I think you all can access and it is helpful for all of you. But I still do encourage active participation and I thank you everyone. And I think most of the devotees have been joining right from the session one. So thank you so much. And my pranams to all the Vaishnavas and Vaishnavis who have assembled here today. And I would please request you to kindly switch on your videos for some time today because it is a Janmashtami special class. And usually I start speaking directly, but today I would like to ask few questions and then go on to the topic. So kindly please switch on your video cameras for a couple of minutes. Uh, हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद प्रणाम। Hare Krishna, Hare Krishna. Uh, Jaya Mataji and Asmita Mataji, your camera is still off. I request you, if you are not uncomfortable, please switch on your camera for a couple of minutes, then you can switch it off again. So, so okay, just let me why I took why I decided to speak on the this topic, Krishna's love for his devotees, is the reason that sometimes I get many questions, and I myself have many questions in my heart sometimes, even after being in Krishna consciousness for the last 16 years. Uh, Many questions come in my heart regarding Srimati Radharani and Krishna, and I have been serving Katha from quite some time. Like when I was in India, I used to conduct a home program at my place in Mumbai, and for 10 to 12 ladies, I used to conduct a home program. So uh, that was the time I started conducting Katha, and so many different kinds of questions came up to me. So many questions I myself had in my heart at that time because I was only, I think, 21 years old at that time. So I did it like for good 6 to 8 months. I did it, but then I had to discontinue it because I had my studies. So my the point I'm trying to say is even after spending a lot many years in Krishna consciousness, even devotees have so many questions in their heart regarding Krishna, and sometimes their faith also dwindles कि अरे यार हम इतना भक्ति कर रहे हैं, कृष्णा है भी या नहीं, हमारी बात सुन भी रहे हैं या नहीं, और हमारे मतलब हमारे ऊपर उनकी कृपा है या नहीं,
हमें जो है he is taking us out of the difficulties or not. So many questions come up. So I would like to start today with asking you a question. So what is the deepest desire of your heart? If I may ask, what is the deepest desire of your heart? ऐसा क्या है जो आप बहुत दिल से चाहते हैं कि अरे यार ये एक चीज तो पूरी हो जाए, मतलब ये तो मैं चाहता हूँ, ये चाहती हूँ कि एक मेरी एक ये इच्छा तो भगवान पूरी करे, जो मैं मतलब भक्ति कर रहा हूँ या जो भी सेवा कर रहा हूँ, अगर भगवान उससे कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अगर भगवान उससे प्रसन्न है, तो एक मेरी ये इच्छा है। बाकी सारी इच्छा भले थोड़ी देर के लिए छोड़ दे, पर एक ऐसी कुछ स्ट्रॉन्ग डिजायर है मेरी जो भगवान पूरी करे। ऐसी क्या स्ट्रॉन्ग डिजायर है आप सबकी, मैं अपनी खुद की भी बताऊंगी, बट पहले आप से मैं शुरुआत करना चाहती हूँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि ये इंटरेक्शन स्टार्ट हो आज का सेशन। तो प्लीज शेयर कीजिए, कुछ भी हो सकता है वो आप अ, जैसे जरूरी नहीं है डीपेस्ट डिजायर इन द सेंस, ये नहीं कि पर्सनल या कुछ मैं ऐसे पूछ रही हूँ, कुछ भी हो सकता है जो भी आप शेयर करना चाहें, आपके करियर के रिलेटेड या आपकी लाइफ के रिलेटेड। not necessarily, if you're not comfortable you need not go into detail, but थोड़ा सा आप बता सकते हैं, तो कोई भी अगर बताना चाहे तो प्लीज शेयर कर सकते हैं। Okay, can I say? Yes. So to get more and more clarity in practicing devotion, more and more clarity, because usually there is always some doubt or like, but or like we must do certain things like 16 rounds, reading 1 hour, Yeah. but Yeah. but need not not just need desperation to do it, but need more clarity to do all the things. Yeah. More clarity towards schedule, like what we should do, what time of the day, and if we are suppose because we are getting stuck for some reason, if you have to skip that, then if that skipping is okay, or something like Yeah. Yeah. just more clarity basically. Yeah. Yeah. Thank you so much, Vidur Prabhu. I really appreciate that you came and shared your heart out. Anyone else would like to share? It can be anything. You need not hesitate thinking it has to be personal, it has to be professional. It can be anything. It can be anything, and you can just summarize in one line and say, if you are not feeling comfortable to go into detail, you can just summarize in one line and say. Anybody else would like to share? I will also share mine. So it's not that I am putting you, all of you, in trouble and I am saving myself. I will also share mine, but I want to hear from the devotees first. Hare Krishna Mataji. So Yes, since you true. asked the deepest desire while we are praying to Krishna, in my case, my deepest desire is to have more and more often an association of a pure devotee, and whom I can render the service and basically ultimately achieve the Vraja Sukha, basically. The Gopas they are enjoying, like not the Gopas of this Vrindavan, like eternally the Gopas when Krishna appeared, basically. Yeah, like So the Golok Vrindavan. the same type of rasa that Gopa Hmm. had, like the bhava that Gopa has. So Thank you, Prabhu, for sharing your desire. So, if anyone else would not like to share, let me tell you. My deepest desire is to develop a relationship with Krishna so strong that it cannot be hampered with anything of this material world. What I mean by saying this कि मैं कृष्णा के साथ एक ऐसा रिश्ता चाहती हूँ जो like which doesn't get
affected by my emotions and my feelings, what I'm based on what I am facing in my material life. So my deepest desire is that like it's like a small, एक छोटी सी चिंगारी के तरह कहीं ना कहीं वो डिजायर मेरे मन में है कि कभी किसी दिन तो मेरा और कृष्ण का रिश्ता ऐसा हो जो मतलब इस दुनिया की हर बात से परे हो, मतलब when something happens, it does in our lives, when anything happens, good, bad, okay, not so okay, anything happens, it definitely affects our relationship and the way we communicate and reciprocate with others. So it is definitely like putting a strain on the relationship. So I want my relationship with Srimati Radha Rani and Krishna to be so strong कि कुछ भी चल रहा हो मेरी material life में, but there is one transcendental couple, one transcendental person in my life, जिसके साथ मैं ऐसा रिश्ता हो कि मैं कभी भी जाके कुछ भी बात कर सकती हूँ, और कि ऐसा नहीं हो कि कुछ प्रॉब्लम आए लाइफ में एंड आई देन टेल कृष्णा कि अरे this is affecting your and my relationship, and my faith in you is getting weaker and weaker day by day. तो ऐसा मैं नहीं चाहती. This is the deepest desire of my heart, and I will now tell you that why I asked this question. I asked this question because I don't know, like, how many of you attended the first session that we conducted. क्योंकि जब फर्स्ट सेशन था तो आई स्टार्टेड विद द पॉइंट कि हम जो भी करते हैं इस दुनिया में, वी ऑल डू इट फॉर गेटिंग हैप्पीनेस, right? And we all do it for getting stability in our life, stability in terms of professional life, personal life, and things like that. So we were talking on those kind of points at that time. So अभी तो हमने स्पेसिफिकली सबको पूछा कि क्या क्या डिजायर है सबके मन की. तो some of the devotees came up and they shared their heart कि वो उनका दिल क्या चाहता है, and even I did mine. So to put in general, अगर हम इस बात को जनरल में डालें, अगर हम किसी का भी मन उठा के देख लें, तो कोई क्या चाहता है, हर कोई स्टेबिलिटी चाहेगा, कोई ऐसी चीज चाहेगा जो उससे कभी दूर ना जाए. इफ यू अर्न मनी, तो मनी के साथ भी ऐसा होता है कि इट इज लाइक प्रेजेंटली you have you have a huge amount of money, abundant money you have, and sometime you may fall short of money. ऐसा होता है, मनी के साथ पैसा आते जाते रहता है, पैसा भी स्टेबल नहीं होता. then the relationships of this world is like, अरे तूने मेरे साथ ऐसा किया, अरे तूने मेरे साथ वैसा किया. तो उस चीज पे हमारे इस दुनिया के रिश्ते टिके होते हैं कि अगर कोई हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहा है तो वी हैव गुड रिलेशनशिप विद दैट पर्सन. बट जैसे ही उसमें थोड़ा सा कुछ भी चेंज आया, किसी के एटीट्यूड में चेंज आया, किसी के बिहेवियर में चेंज आया, तो वी आर लाइक कि नहीं, अभी नहीं, वी आर नो मोर फ्रेंड्स. लाइक कुछ फ्रेंड्स के फ्रेंडशिप देख लीजिए आप, फ्रेंडशिप में ऊपर नीचे होता है तो फ्रेंडशिप टूट जाती है आजकल. सो मेनी मैरिजेस आर फॉलिंग अपार्ट कि थोड़ा सा भी एडजस्टमेंट नहीं है, थोड़ा सा भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है. सो एज लॉन्ग एज the person, the other person is fulfilling your interest, the relationship is okay. But if even at one single point the other person is not able to fulfill uh, your interest, or not able to understand
the perspective that you want to put, not able to like be according to you or be according to us, then that relationship is like i- is broken, is fallen apart. But in general, सबके मन की ये prosperity, ये सब stability, professional life में अच्छा होना, material life में अच्छा होना, this is a part of prosperity जो आती जाती रहेगी. बट हर किसी का दिल प्यार चाहता है, हर किसी का दिल चाहता है कि कोई ऐसा हो जो मुझे बिना जजमेंटल हुए प्यार करे. तो ऐसा तो कोई लाइक नो ह्यूमन बीइंग इज केपेबल ऑफ लविंग यू परफेक्टली, राइट? सो आप किसी भी रिश्ते में देख लीजिए, वो आप फ्रेंड्स के रिश्ते में देख लीजिए, आप कॉन्जुगल रिलेशनशिप में देख लीजिए, आप लाइक brother and sister, and even parents, they have certain kind of like थोड़ा सा subtly उनके दिमाग में रहता है that when the child grows up, he will do good for himself also and for us also. He will take good care of us. He will have a stable and prosperous life, and then he like जैसे बोलते हैं कि ओल्ड एज में हमें अच्छे से रहेंगे. So कुछ ना कुछ expectation is always there. Every relationship has some sort of expectation. मतलब the love of parents is the closest to the love of is the closest the unconditional love that Krishna has for us. Okay, and but उसमें भी थोड़ा सा self interest कभी तो झलकता है, because sometime if the child is not able to do that well in life as the parents had expected from him or her, तो वो कहीं ना कहीं दिखता है. Sometimes the parents have huge expectations from children and the children are not able to fulfill that, and they have a strained relationship with their parents. So sometimes तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद तो होती है हर एक रिश्ते में. But for Krishna the case is total opposite. Why I'm making this point? Because the topic of today's session is the love of Krishna for his devotees. And devotees के तो हम बहुत सारे examples देखेंगे. But उससे पहले मेरे को I want to like discuss one verse from Srimad Bhagavatam, which when I heard for the first time, I was like, who can love so much? इतना प्यार तो कोई मतलब ऐसा तो कोई सोच ही नहीं सकता है. जब मैंने पहली बार उस वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन सुना और जब मैंने पहली बार उस वर्ड्स को एक्चुअली पढ़ा, तो आई वाज लाइक इट लाइक आई वाज ऑस्ट्रक कि ऐसा ऐसा प्यार भी हो सकता है. आई मीन कृष्णा के प्यार की तो कोई हद ही नहीं है. आई वाज ऑस्ट्रक, आई वाज कंप्लीटली लाइक बोलते ना जैसे क्लीन बोल्ड हो जाना, मैं क्लीन बोल्ड हो गई थी. तो ये एक वर्स मैं शेयर करना चाहती हूँ. So I am now changing my screen. So just this was the just let me now can you see the screen? Please someone confirm. Yes, Mataji. Okay. So this verse is from Srimad Bhagavatam, 3rd canto, 2nd chapter, verse number 23. Okay, so this verse basically speaks कृष्णा का दिल कैसा है, वो आपको ये वर्स में पता चलेगा. So I'll just recite and I'll not read the purport. I will just recite the verse and I will just explain what I had heard when I first heard the explanation of this verse. So the verse goes like this. Aho bakiyam stanakalakutam jigham saya payayat api asadvi लेभे गतिम धात्री उचितम ततोन्यम
Tam va dayalum sharanam vrajema. Okay, so I will just read the translation and then I will not read the purport and I will just give the explanation of this verse. Alas, how shall I take the shelter of one more merciful than he who granted the position of a mother to a she demon Putana, although she was unfaithful and she prepared deadly poison to be sucked from her breast. So, uh, yeah, this was the verse. So now you see, like before giving the explanation of this verse, I would like to make a point which will make the explanation of this verse even more relatable. So imagine if a person is all knowing, all powerful, and all pervading, okay? And he knows like your everything, good, bad, your secrets, your he knows your heart. So अगर इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान हो जो ऑल परवेडिंग हो, ऑल नोइंग हो और ऑल पावरफुल हो, तो वो तो आपको एक्सप्लॉइट कर सकता है. या you can get exploited by that person to like to an unlimited degree. like वो जिस एक्सटेंट तक चाहे एक्सप्लॉइट कर सकता है हमें, क्योंकि वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है. इमेजिन कीजिए अगर ऐसा कोई इंसान इस दुनिया में होता तो हमारा तो क्या ही होता फिर. वी लाइक हम तो उस इंसान की मर्जी पे होते. लाइक वी we had then we would have no other option than to be at that person's mercy. That's it. तो वो तो आपको एक्सप्लॉइट कर सकता है, यूज कर सकता है. बट कृष्णा बट ऑन द अदर हैंड कृष्णा इज ऑल पावरफुल, ऑल परवेडिंग, ओके, ऑल नोइंग. ये तीन चीजें कृष्णा में है. वो सब जानते हैं, वो ऑल पावरफुल है, वो ऑल परवेडिंग है, वो सब जगह है. कोई जगह नहीं. आप किसी इंसान से छुप सकते हैं लेकिन आप भगवान से नहीं छुप सकते. तो ये तीन चीजें कृष्णा में है. लेकिन फिर भी कृष्णा ने कभी हमें एक्सप्लॉइट नहीं किया है, राइट. कृष्णा में एक और चीज है. ये तीन चीजें हैं. ही इज ऑल पावरफुल, ही इज ऑल परवेडिंग, ही इज ऑल नोइंग, एंड द फोर्थ थिंग इज दैट ही इज ऑल लविंग. He is all loving. Just imagine, like we know ourselves in this life like 30-40 years down, but Krishna knows us from like टाइम इमेमोरियल. जितने भी हमारे अब तक जन्म हुए हैं हम सब कुछ भूल चुके हैं, बट कृष्णा को सब याद है. कृष्णा को ये याद है कि हम पहले क्या थे, हम अभी क्या हैं और हम आगे क्या होंगे या क्या करेंगे. कृष्णा को he knows our thought, word, deed, everything, but Krishna does not exploit. आप अगर ये मटेरियल वर्ल्ड में किसी से भी कोई सीक्रेट शेयर करते हैं और उसको बोलते हैं कि यार किसी को बताना मत, आई एम टेलिंग यू, आई एम शेयरिंग माई हार्ट आउट टू यू बिकॉज आई ट्रस्ट यू, कहीं ना कहीं वो बात किसी ना किसी तक तो पहुंचेगी. या फिर अगर वो बात किसी और के साथ शेयर नहीं होती तो जब भी उस सामने वाले पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा तो वो उस बात को आपके अगेंस्ट यूज कर सकता है. बट कृष्णा डज नॉट डू दैट. ही इज ऑल लविंग ऑल्सो, राइट. इमेजिन लाइक कृष्णा के पास तीनों चीजें हैं. ही कैन एक्सप्लॉइट अस लाइक एनीथिंग, ही कैन डू एनीथिंग विद अस व्हाटएवर ही वांट्स. कृष्णा को तो हमारे अंदर के थॉट्स भी पता है जो हम कभी किसी को व्यक्त नहीं करते, सिर्फ अपने मन में सोचते हैं. कृष्णा तो कुछ भी कर सकते हैं बट स्टिल ही डज नॉट एक्सप्लॉइट अस, एंड बिकॉज ही इज ऑल लविंग. एंड कृष्णा के ऑल लविंग होने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये वर्ड जो हमने अभी रिसाइट किया. सो बेसिकली this verse is all about where Uddhava is telling Vidura कि
you know, we think like जैसे अगर हमको किसी के बारे में अच्छा सोचना है तो हम सिर्फ उन्हीं के बारे में अच्छा सोचेंगे जिसने हमारे लिए कुछ अच्छा किया हो। जिसने हमारे साथ कुछ बुरा किया हो ना, वो कभी भी हम उसके बारे में यू नो इवन इफ वी फॉरगिव दैट पर्सन, कहीं ना कहीं ग्रज रह जाता है हमारे मन में कि अरे यार ऐसा हुआ था, अरे वैसा किया था। ठीक है, मतलब आई डोंट विश इविल अबाउट फॉर दैट पर्सन, मगर आई कैन नॉट विश गुड ऑल्सो फॉर दैट पर्सन, क्योंकि उसने मेरे साथ ये किया, ऐसा किया, मेरे साथ उसकी वजह से बुरा हुआ। तो हम तो सिर्फ यही कर सकते हैं कि जो हमारे लिए भला सोचे उसका हम भला सोच सकते हैं। हम तो उस एक्सटेंट पे जा ही नहीं सकते। बट कृष्णा क्या है, उद्धव इज टेलिंग विदुरा कि पूतना had come to kill Krishna when he was a baby. She had come to feed him the milk, poisoned milk from her breast. But still, Krishna gave her the position of a dhatri. Dhatri means like the mother, okay? And Krishna gave her the position of a dhatri. And Krishna did not see anything. The only thing that Krishna saw was I stuck milk from Putna's breast like a child. तो उसने मुझे माँ के जैसे दूध पिलाया है, and that's why he liberated Putna and gave her the position of like that of Mother Yashoda in Golok Vrindavan. तो अभी आप ये बात से सोचो कि जितने पॉइंट्स हमने अब तक डिस्कस किए, ये रिलेशनशिप, जो मटेरियल वर्ल्ड के जो रिलेशनशिप्स होते हैं और जो कृष्णा के साथ जो रिलेशनशिप है, वो मतलब किस लेवल का है। अब तक तो मैंने डिवोटीज के एग्जाम्पल नहीं दिया। पूतना वॉज नॉट अ डिवोटी, पूतना वॉज अ डेमोन। शी हैड कम टू किल कृष्णा। अभी कौन ये सोच सकता है? nobody can think like that, like Krishna did. Like Putana had bad intentions, but she fed the milk of her breast to Krishna. बस इसी बात से कृष्णा ने उसको गोलोक वृंदावन में ऑलमोस्ट मदरली पोजीशन दे दी, विच इज सेकेंडरी टू जस्ट मदर यशोदा। ओके, तो ये मतलब कृष्णा का लविंग हार्ट इज सो लविंग दैट इट इज इनडिस्क्राइबेबल। तो ये तो डेमोन्स के लिए इट इज डिस्क्राइब्ड when Krishna struck the life air out of Putana, and when her body fell on the ground, it is described कि जब उसका जो पूतना के जब प्राण निकले तो वो बहुत फ्रेग्रेंट हो गए और वो ऊपर की तरफ जा रहे थे। बहुत पूतना के बॉडी से बहुत फ्रेग्रेंस आ रही थी when Krishna killed her. Putana's body had become very very fragrant, and uh, the life air of Putana was going upwards. So इसका क्या मीनिंग होता है? दैट she got liberated just by one. वो उसका इंटेंशन खराब था, बट उसका एक्शन was that of a mother. तो कृष्णा ने बुरा नहीं देखा, सिर्फ अच्छाई चुन ली, और अच्छाई चुन के कृष्णा ने धात्री का पोजीशन दिया पूतना को। धात्री मीनिंग जब मदर यशोदा वुड बी एब्सेंट टू टेक केयर ऑफ कृष्णा, तो उस टाइम पे ही वुड be looked after by Putana. Dhatri means secondary to mother. The position of Mother Yashoda is undoubtedly the biggest in the spiritual world. But there are other motherly gopis also who assist Mother Yashoda in taking care of baby Krishna. So Putana got the position of Dhatri, meaning
जब Mother Yashoda being absent, Krishna would be looked after by Putana in Golok Vrindavan. So imagine like Krishna's mercy, Krishna's unconditional love. You can just imagine. Meaning, I cannot give more explanation. When I heard this, I literally went to my deities and I was like, Krishna, what are you? What kind of a heart do you have? Like, we hold so many grudges with people, um, for even small things, but you are the one, like, बोलते हैं ना, जैसे स्वान होते हैं. Swans are the birds who can separate milk and water and who intake only milk. If you put some milk in front of a swan, the swan will separate the water from the milk and will drink only the milk. So Krishna, even if you have bad intention in your heart, but even if you perform small service to Krishna, Krishna will remember that service eternally. Okay, and Krishna, uh, what we do, कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है तो हम उसको बोलते हैं कि यार, यू नो I will always remember what you did for me. I am grateful to you. I am, your support means a lot to me. And we compliment that person in so many ways. But कुछ टाइम के बाद we forget that. हम उससे आगे बढ़ जाते हैं एंड हम बाद में हमें लगता है कि अरे यार, उस टाइम पे तो ठीक है, इसने मेरा हेल्प किया था बट इतना भी कुछ स्पेशल नहीं किया था. सो वी बिकम अनग्रेटफुल आफ्टर सम टाइम. हम अनग्रेटफुल हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद. जब हमें मदद की जरूरत होती है और हमें जब मदद मदद मिल जाती है, हम उस प्रॉब्लम से निकल जाते हैं, तो हम थोड़े टाइम के बाद अनग्रेटफुल हो जाते हैं. थोड़े टाइम के बाद हमको लगता है कि ठीक है ना, ही उस द पर्सन हेल्प मी एंड आई थैंक द पर्सन इन वॉट एवर वे आई कुड, टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम. एंड मैंने भी उसके साथ थोड़ा रेसिप्रोकेशन किया. थोड़ा, या किसी को गिफ्ट दे देंगे या कुछ दे देंगे. बाद में वी जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि यार इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, और ठीक है, हो गया, अभी दैट इज डन. बट अब कृष्णा के लिए कुछ सर्विस करेंगे हम, तो कृष्णा उसको एटर्नली याद रखेंगे. और वो सर्विस, छोटी सी सर्विस भी, उस टाइम पे हमें काम आएगी, उस डिफिकल्टी से हमें बाहर निकालेगी. जब हमारा कोई हेल्प नहीं कर पाता या कोई साथ में नहीं होता, उस टाइम पे कृष्णा साथ होते हैं. कृष्णा कभी नहीं भूलते. लाइक ऐसा नहीं कि कृष्णा 1 महीने तक याद रखेंगे, 1 साल तक याद रखेंगे, 2 साल तक याद रखेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे. नहीं, कृष्णा कभी नहीं भूलेंगे. एंड दिस इज लाइक, मतलब, कैन यू इमेजिन द इनोसेंस ऑफ कृष्णा's heart? He, being the supreme personality of Godhead, knowing Putana's intention that she has come to kill me. So, but Krishna saw that I got fed by her. Uh, I got fed by her with a breast milk like that of my mother. तो उसका इंटेंशन कुछ भी रहे, कृष्णा ने वो कुछ नहीं देखा. कृष्णा ने उसको वो स्थान दिया जो लाइक करोड़ों भक्तों को दुर्लभ है. सो कैन यू इमेजिन लव, द इनोसेंस ऑफ कृष्णा's हार्ट? वी, अगर हम, मतलब, आउट ऑफ ह्यूमिलिटी भी अगर हम सोचे ना कि दिस पर्सन इज बिग बिग, आई एम इनसिग्निफिकेंट. इवन अमंग डिवोटीज ऑल्सो, जब हम डिवोटी कम्युनिटी में भी जाते हैं, तो वी बिकम सो लाइक, नो नो, you are a good devotee, you are this, you are that. We appreciate other devotees, we encourage other devotees, and we are humble. Like at least in the devotee community, while we are in the temple, we try to be humble. But somewhere, हमको ये रहता है कि थोड़ा सा एनवी रहता है, थोड़ा कुछ रहता है. और
मतलब इसके कोई डिवोटी आपको अच्छा लगता है, कोई डिवोटी नहीं अच्छा लगता, किसी के साथ आपकी बनती है, किसी के साथ नहीं बनती है, बट कृष्णा इज टोटल ऑपोजिट. एंड कृष्णा, एज आई सेड, is all powerful, all loving, all pervading, all knowing, but the fourth quality, all loving, वो किसी में भी नहीं है. अगर अगर किसी को आपके बारे में कुछ ऐसा पता चल जाए जो नहीं पता होना चाहिए, तो वो तो आपको एक्सप्लॉइट करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा. बट कृष्णा इज टोटल ऑपोजिट. एंड the other reason that why I chose this topic today is many people ask that इतना सब कुछ हो रहा है दुनिया में. when I used to take home program earlier also, तो बहुत सारे लोग मुझे ये सवाल पूछते थे कि इतना सब कुछ हो रहा है दुनिया में, so many bad things are happening, and then where is your God, like so many kinds of bad things to good people actually, जिन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया होता या कुछ गलत नहीं किया होता, उनके साथ इतना खराब हो रहा है, तो आपके भगवान कहाँ है, आपके भगवान क्यों नहीं आते? तो one time I was personally attending one class by my Siksha Guru, His Grace Radha Gopinath Prabhu. And he was mentioning कि जो this is Kali Yuga going on right now, right? And the other three yugas in Satya Yuga, Treta Yuga, and Dwapar Yuga. Satya Yuga में what happened that the demons and the devtas, demons और देवतास, जो देव हैं और जो जो राक्षस है, वो अलग अलग प्लैनेट्स में रहते थे सतयुग में. एंड त्रेता युग में ऐसा हुआ कि अलग अलग कंट्रीज में रहते थे. like Lord Ram is in Ayodhya, okay, and Ravan is in Lanka in Treta Yuga. They are living in different countries. And in Dwapara Yuga, they live in the same families. But in Kali Yuga, so in all three yugas, you can see the demons physically with your eyes. But in Kali Yuga, the demon is not visible to you. It's in your heart in the form of lust, pride, greed, envy, anger. It's in the form of all the six kind of the छह अनर्थ होते हैं, उसके फॉर्म में वो हमारे मन में रहता है. So unless and until we devote our uh, devote our attention towards Krishna, devote our life towards Krishna, or in some way or the other, वो gradually वो complete डिवोटेलमेंट होगा ग्रेजुअली. पहले तो थोड़ा थोड़ा टाइम दे के शुरुआत करनी होगी कि हम कृष्णा की तरफ बढ़े, तो वो ग्रेजुअली होगा. तो अनलेस एंड अनटिल वी ट्राई टू डू दैट, आवर हार्ट विल नॉट बी प्योर. तो इट इज लाइक दैट. तो जब तक आपके थॉट्स क्लियर नहीं होंगे, तो your actions won't be clear. And it's not that Krishna does not send guidance in our life, like today. ऐसा नहीं है. अब जैसे आप देखो, जब प्रहलाद was being tortured by Hiranyakashipu, Prahlad had so much of love and so much of devotion in his heart that Krishna had to come in the form of Narsimhadev to tear apart Hiranyakashipu and to save Prahlad. Krishna helped Sudama, okay, by giving him everything, and because he loved Sudama, Krishna helped Prahlada. Krishna helped, like in the form of Lord Rama, Krishna helped uh, like the Vanaras. Lord Rama helped the Vanaras. He killed Ravana, and he killed all the demons in the Dandakaranya forest. So so many instances are there where Mirabai got protected. So many people were against Mirabai, and they tried to kill Mirabai,
and in her own family, Mirabai was attempted to be poisoned, but she was saved by Krishna. Krishna helped Draupadi when she sincerely called out. So, so, so why will Krishna not help? So whatever he does is he does for his devotees only. So much of love Krishna has for his devotees. So much of love, like हम अगर किसी को सॉरी बोलेंगे, like if we say sorry to someone, हमने अगर किसी से सॉरी कहा तो हम लाइक उसको दिल से माफ नहीं करेंगे, बट वंस वी टेल कृष्णा कि कृष्णा मुझसे बहुत गलती हुआ है, आई एम सॉरी, प्लीज एक्सेप्ट मी, आई मीन डोंट लीव मी, so Krishna will accept us. So much, all these examples show us that Krishna has unconditional love for us, and um, and in Kali Yuga, the demonic nature can be abolished by diverting our attention to Krishna. And if we sincerely call out to Krishna for help, why will Krishna not help? If he can uh, be so merciful to the demon Putana, if we are sincerely putting effort and trying to please Krishna, why will he not be happy with us? And why will he not help us? And and that's the reason that I decided to take up today's session. And one last point I would like to make is that बोलेंगे कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप जो बोल रहे हो वो ठीक है, वो सुनने में अच्छा लगता है, बट इट्स नॉट प्रैक्टिकल. आप जो रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हो कि कृष्णा जजमेंटल नहीं है, कृष्णा मतलब इफ कृष्णा एक्सेप्ट्स यू देन ही प्योरिफाइज यू ग्रेजुअली, एंड वो आपकी गलतियां नहीं देखते, सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट आज कृष्णा साक्षात रूप में तो प्रेजेंट है नहीं, तो हमें अगर उनसे बात करना है, हमें अगर उनके साथ रेसिप्रोकेशन करना है, हमें अगर उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, हमें अगर उनसे मिलना है, तो कैसे मिले? कृष्णा तो हमें साक्षात दर्शन देंगे नहीं. तो अ, तो हाउ डू वी डू दैट? द सिंपल आंसर टू दैट इज, हम सबके घर में डेटीज तो होते हैं, किसी के घर पे लड्डू गोपाल होते हैं, किसी के घर पे गौर निताई होते हैं, किसी के घर पे यू नो विच एवर फॉर्म ऑफ डेटी यू लव, you have some deity in a house. You can establish your relationship with your deities. And even so, like जब मैं एग्जांपल दे रही थी, सबसे बड़ा एग्जांपल आई थिंक Arjun, the friendship of Arjun and Krishna. Apart from Sudama, if there was one strong friendship with Krishna, there it is it is that of Arjuna. How he helped Arjuna. So many people say that Krishna ने भगवत गीता में सिर्फ अपने बारे में बात किया है. I am God and this and that. Krishna has a lot of arrogance and this and that. So Krishna is providing sun, light, water, air, even to the atheistic people. जो नास्तिक लोग हैं, उनको भी कृष्णा जरूरत की सब चीज दे रहे हैं. तो कृष्णा जो कृष्णा के प्रति इंक्लिनेशन रखते हैं, उनका साथ कृष्ण क्यों नहीं देंगे? ऑब्वियसली, ऑफ कोर्स देंगे. अगर वो नास्तिक लोगों को भी सब दे सकते हैं, तो हमें तो देंगे ही, ऑफ कोर्स, बिकॉज वी आर trying our best to divert our attention towards Krishna. And जिनको भगवत गीता के ऊपर डाउट है, उनके लिए देयर इज वन थिंग कि भगवत गीता अगर आप देखेंगे तो उसका जो जब भी न्यू चैप्टर शुरू होता है, तो उसके ऊपर एक पिक्चर है जहाँ पे कृष्णा इज सिटिंग इन द चैरियट एंड अर्जुना इज स्टैंडिंग एंड शूटिंग एरो. So Krishna is accepting
द पोजिशन ऑफ अ चैरियट ड्राइवर। कौन है कृष्ण? कृष्ण षड ऐश्वर्य से पूर्ण परम परमेश्वर, परम भगवान है। कौन है कृष्ण? मतलब साक्षात भगवान है, बट वो कृष्ण के वो अर्जुन के चैरियटर बनने को स्वीकार करते हैं। वाई? बिकॉज he loves his devotees, right? And as far as relationship with the deities is concerned, I think like that is natural. Like just I would like to conclude today's class with uh, giving uh, a small glimpse in my life. So, uh, so when I in the first session I had mentioned, I think if you remember, कि जब मैं कृष्ण भक्ति में आई थी, I was very young. So it is not, हम कृष्ण को नहीं चुनते, कृष्ण हमको चुनते हैं। तो उसका मतलब बहुत लॉन्ग स्टोरी है, बट इन शॉर्ट मेरी लाइफ का सबसे पहला रिलेशनशिप कृष्णा के साथ जुड़ा। एंड मुझे पता भी नहीं था, कृष्णा उसका भूमिका पहले से बांध रहे थे। एंड मेरे घर पे लड्डू गोपाल आए, एंड देन आई स्टार्टेड सर्विंग माय लड्डू गोपाल। सो इनिशियली इट वाज लाइक जैसे होता है ना व्यापार, कि इनिशियली मेरा और कृष्णा का रिलेशनशिप ऐसा था, व्यापार जैसा था, कि अगर तू मेरे लिए ये करेगा तो मैं तेरे लिए ये करूंगी, अगर तू मेरे लिए ये करेगा तो मैं तेरे लिए ये करूंगी। सो आई हैड नो इंटेंशन ऑफ बिकमिंग अ डिवोटी। मतलब उस टाइम पे आई वाज वेरी यंग, लाइक ऑलमोस्ट बचपन ही समझ लो। तो ऐसा था, तो ऐसा एक व्यापार जैसा था, दैट इफ यू डू दिस फॉर मी, आई विल डू दिस फॉर यू, आई विल डू दिस फॉर यू, यू डू दिस फॉर मी। तो ऐसे करते 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 मुझे नहीं पता, एंड आई ऑल्सो हैड दैट सेम इंटेंशन कि अगर मैं भगवान को घर पे लेके आऊंगी और अगर मैं भगवान की पूजा करूंगी तो वो मेरे मन की जो सारी इच्छाएं हैं सब पूरी करेंगे। एंड then I will be happy, like there is going to be fulfillment of my desires. But करते 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 कृष्णा से मुझे प्यार हो गया, and I think I started talking to Krishna, and I think I started sharing my heart out to Krishna. Like दिन भर में जो भी होता था मैं कृष्णा को आके बोलती थी कि पता है आज दिन में ऐसा हुआ, आज दिन में वैसा हुआ। मैं जब भी अपसेट फील करती थी तो मैं कृष्णा से आके कहती थी। तो ऐसे करते करते मैंने स्टार्टेड टॉकिंग टू कृष्णा, आई केप्ट ऑन सर्विंग हिम। तो एक अफेक्शन हो गया कृष्णा के प्रति मेरे मन में। एंड पर्सनली व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये लगता है कि भक्ति में आए हैं तो मतलब जीवन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई रहेगी। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अरे आप भक्ति में आए तो आपके जीवन में कुछ गड़बड़ हुई क्या? कुछ तो मतलब मिस हैपनिंग हुई क्या जो भक्ति की तरफ आ गए इतने यंग एज में? तो बहुत सारे लोग ऐसे बहुत सारे लोगों को पूछते हैं। पर्सनली मुझे तो आई थिंक आई हैवंट डिस्क्लोज दिस, तो पर्सनली मुझे कुछ फिजिकल लिमिटेशंस है, मैं बिना सपोर्ट के नहीं चल सकती। आई नीड सपोर्ट फॉर वॉकिंग। तो ये मेरे फिजिकल लिमिटेशन है। तो एंड इट्स बाय बर्थ। तो एंड जब मैं छोटी थी, जब मेरी भक्ति स्टार्ट हुई, तो बहुत सारे लोग मुझे आके ऐसे पूछते थे कि हाँ अरे आपके जीवन में तो थोड़ी कमी है ना, तो आप इसलिए कृष्ण भक्ति की तरफ आए होंगे। एंड आप बहुत सारी चीजें मिस करते होंगे, दोस्तों के साथ बाहर आना जाना, तो आप अपना एक खालीपन भरने के लिए आप कृष्ण भक्ति की तरफ आए होंगे, और इसीलिए आपने भक्ति चुना। बट एंड एट दैट टाइम मेरे को बहुत बुरा लगता था दैट व्हाई पीपल से लाइक दैट तो I used to share my heart with Krishna, and I used to cry also at that time. But somehow when today I look back कि मैं कृष्णा की तरफ कैसे अट्रैक्ट हुई, पहली बार जब मैंने किसी को देखा कृष्ण की लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए, तो मेरे मन में भी विचार आया कि मुझे भी लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए, तो मेरी भी इच्छाएं पूरी होंगी। तो इस तरह से कृष्ण मेरे जीवन में आए, और देखते देखते कृष्ण मेरे जीवन बन गए।
आज मेरे घर पे श्री श्री राधा श्याम सुंदर है मेरे, युगल सरकार है मेरे, लड्डू गोपाल है। तो एक समय था जब कृष्ण मेरे जीवन का एक हिस्सा थे, और आज एक समय है कि कृष्ण हर बीतते दिन के साथ मेरा जीवन बनते जा रहे हैं। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ भी होता है लाइक, तो आप जाके उसको भगवान से शेयर कीजिए, बात कीजिए। तो इस तरह से आपके मन में भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा, और जब आपको एक बार प्रेम हो जाए देन देयर इज नो लुकिंग बैक। एंड जैसे एक लास्ट पॉइंट मैं बोलना चाहूंगी, जैसे आप यहाँ पे किसी के लिए ज्यादा अवेलेबल रहते हो या आउट ऑफ द वे जाके किसी की हेल्प करते हो ना, तो सामने वाला उस बात को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता, एंड कि अरे बहुत ज्यादा अटेंशन दे रहा है, बहुत ज्यादा, लाइक लिटरली बोलेंगे तो बोलेंगे कि अरे ही इज गेटिंग टू इन्वॉल्व विद मी, ही और शी इज गेटिंग टू इन्वॉल्व विद मी। बट कृष्णा कृष्णा लव्स अटेंशन। एक बार को ऐसा हुआ कि मैं आई वुड लाइक टू पर्सनली से दिस, बिकॉज मेरे जो डेटीज है वो, मतलब जो मेरा पहले घर था इंडिया में, वहां मैंने डेटीज ऐसे रखे थे जैसे इन द सेम बेडरूम इन माय रूम ओनली। तो मैं सुबह उठती थी तो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आई, मेरा ऑल्टर ऐसे रखा था मैंने कि सुबह उठ के मेरी आंखें खुले तो सीधा राधा श्याम सुंदर का दर्शन हो। तो मैं one morning I got up and I then got ready for doing my things, and after that, and when I after having my bath, when I got ready, I sat with Krishna and I came out and I called my mother. I said, "Mommy, कल रात को तो मंदिर सब ठीक था, मैं गुड नाइट बोल के सोई कृष्णा को आराम से, कृष्णा अच्छे से बैठा था, राधा रानी अच्छे से थी। आज ये मंदिर में सब कुछ हिला हुआ क्यों है? मतलब कोई चीज अपनी जगह पे नहीं है ऐसे, मतलब पूरा प्रभुपद का फोटो हिला है, और गोपीनाथ जी का फोटो हिल गया है, और राधा श्याम सुंदर का श्रृंगार मतलब बिगड़ गया है, बाल कहीं और है, पगड़ी कहीं और है, मोर पंख गिरा हुआ है। व्हाट इज, रात को कोई आया था क्या रूम में? और मतलब मैंने मम्मी को मेरी ऐसा पूछा कि मम्मी ऑल्टर को धक्का लगा था क्या किसी का, किसी मतलब किस ऑल्टर थोड़ा पुश हो गया था क्या गलती से किसी से? तो क्लीनिंग करते समय कोई आया होगा रूम में, या कुछ भी, रात को अर्थक्वेक आया तो नहीं आया, तो ऐसा पूरा ऑल्टर अस्त व्यस्त कैसे हो गया? रात को तो मैं गुड नाइट बोल के सोए आराम से, और बराबर बैठा था, सब कुछ ठीक था, श्रृंगार भी ठीक था, एंड दे वर कंफर्टेबल। आज देखो तो पगड़ी कहीं और है, बाल कहीं और है, हाँ, अंग वस्त्र कहीं और है, राधा रानी का मुकुट गिरा है, चुन्नी गिरी हुई है, सब कुछ गिरा हुआ है, प्रभुपद के फोटो गिरे हुए हैं, ऐसा कैसे? तो मम्मी से, नहीं रात को कोई भूकंप नहीं आया बेटा। मैंने बोला थोड़ा बहुत आया क्या, कुछ माइल्ड रिक्टर स्केल का कुछ, तो किसी ने धक्का मारा या कुछ? तो मम्मी बोली नहीं कुछ नहीं, कोई नहीं आया तेरे रूम में। तो मैंने मम्मी से कहा फिर ऐसा कैसे, ऑल्टर कैसे हिल गया अपने? तो मम्मी ने बोला कि तूने लास्ट श्रृंगार कब किया था? तो मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी थोड़ा इस बार लेट हो गया, मैं हर महीने में एक बार श्रृंगार करती हूँ भगवान का, तो इस बार थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं थोड़ा बिजी चल रही थी, तो ट्यूशन ले रही थी और कॉलेज का भी था, तो टाइम नहीं मिला करने को। तो मम्मी ने मुझे बोला कि शायद कृष्णा तो जो बोल रहे हैं कि इट्स इट्स लेट, आई थिंक यू शुड गेट लाइक, मुझे एकदम नया श्रृंगार करो मुझे। सो आई इमिडिएटली गेव अप एवरीथिंग, जो भी मेरे उस टाइम के काम थे, उस दिन मैंने सारे काम छोड़ के पहले कृष्णा का पूरा सेवा किया, उसको नहलाया, उसको तैयार किया, खाना खिलाया, भोग लगाया, उसकी सेवा करने के बाद फिर मैंने दिन भर के जो सारे मेरे काम थे वो मैंने किए। सो कृष्णा एक्चुअली लव्स अटेंशन। कृष्णा कभी ये नहीं बोलेंगे अरे यार ये, मतलब ये मुझे पे ध्यान दे रहा है, इसके पास कोई और काम नहीं है क्या? तो जैसे हम लोग ऐसा बोलते हैं, कृष्णा कभी ऐसे नहीं बोलेंगे। तो कृष्णा एक्चुअली लव्स अटेंशन। कभी कभी आप
अगर कृष्णा को टाइम नहीं दे पाते तो कृष्णा आपसे खुद टाइम निकलवा लेते हैं, जैसा मैंने आपको अभी बताया। और ऐसे जब आप कृष्णा के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे ना, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो आपके विग्रह आपके साथ करेंगे। और आप कृष्णा के साथ कुछ भी बात कर सकते हो, किसी भी रिलेशनशिप में एस्टेब्लिश कर सकते हो। कैन बी कृष्णा फ्रेंड, कृष्णा लवर, you can be anything in relation to Krishna, and you can have more than one relationship with Krishna also. So that is it. I think I have taken interruption का time भी आज. It's exactly 12 o'clock. So that is the reason I think मैं deity worship के ऊपर और मैं कृष्णा के qualities के ऊपर बात करना चाहती थी आज, क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है। तो इट्स माय सिंसियर रिक्वेस्ट कि हम सब कृष्ण में अपना कॉन्शियसनेस को थोड़ा डालने की ट्राई करेंगे और कृष्ण के प्रति अपने मन में थोड़ा रुझान लाने की ट्राई करेंगे। और इस जन्माष्टमी हम भगवान से बहुत सारी प्रेयर्स करेंगे कि वो हमें बहुत सारा डिवोशन दे, अपने प्रति प्यार दे, और हमेशा अपना आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा आज जो भी मैंने कहा। एंड आई थिंक आज मैं अपने मन से बात करना चाहती थी, other than preparing something and saying. I just read this verse yesterday and I thought that क्यों ना ये टॉपिक के ऊपर बात की जाए कि कृष्णा कैसे हम सबको इतना प्यार करते हैं। तो थैंक यू सो मच, एंड इफ यू हैव एनी कमेंट्स आई थिंक वी कैन be here till 12:05. It's 12:01. If you have any comments, any suggestions, anything to say, how did you like it? You can just share. The floor is yours. And I'm sorry I'm over time today. Thank you so much. Hare Krishna, can I talk? Yeah. Hare Krishna, Vidur Prabhu. Yes. We can hear you. Can That you was hear us? amazing. Can you hear me? Yeah, I can hear you now. तो आपका डीटीज वाला एक्सपीरियंस मेरे को बहुत अच्छा लगा, जो जो उनका सारा ऑल्टर सारा अंदर से बिखरा हुआ था। दैट वाज रियली नाइस कम्युनिकेशन बिटवीन भगवान एंड यू। एंड सेकेंडली वो भी मेरे को बहुत इंस्पायरिंग लगा। एंड कि लाइक हाउ यू केम इनटू bhakti from the very early childhood, and I can see a special bond between you and Krishna, like you know I think you are on mute again. Hare Krishna, Vidur Prabhu, are you there? here you cannot able to hear me. Yeah, now I can hear you. Okay. Okay, so I was saying that जो आपका वो altar वाला Yeah, altar wala thing I heard. After that, I lost you. I think you have some network problem today. So I think we've lost Vidur like Prabhu. I cannot hear you, Prabhu. Asmita Mataji, do you want to share something? Any comments? Anything you liked, or something that I can improve? Are you there, Asmita Mataji? हरे कृष्ण माता जी मैं प्रणाम। हरे कृष्णा माताजी, कैसा लगा आपको आज? मैंने एक छोटा सा प्रयास किया। माता जी मुझे आपकी क्लास सुन के बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम अभी तो अभी जहाँ रहती हूँ ना उधर टेम्पल भी नजदीक नहीं है, फिर भक्तों का संग तो है, पर ऐसे वो भगवान आपकी रियलाइजेशन सुन के ना मुझे आ, बहुत ही अच्छा लगा माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। आई होप कि
आप सबके लिए, मेरे लिए तो रिलेशेबल है ही, आप सबके लिए भी, आपको भी थोड़ा रस आस्वादन मिलता हो जो प्रयास इस्कॉन मिल्टन के द्वारा हम कर रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा रस मिलता हो। और बस यही मेरी कोशिश है कि मैं थोड़ा कुछ करूं, क्योंकि ये मैं अपने लिए भी करती हूँ, क्योंकि जो मैं बोलती हूँ, डिस्कस करती हूँ, कथा करती हूँ, वो सब मेरे कान में भी जाता है, तो अ, खुद मेरा विश्वास भी कृष्ण के प्रति बढ़ जाता है। तो थोड़ी सी मैं स्वार्थी हूँ, अ, अपने लिए कर रही हूँ ये मैं। और अगर इसमें आप सबको कुछ भी प्रेरणा मिलती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। Thank you for joining, and I think Vidar Prabhu, I will connect to you offline. I think No you problem. have some network problem today. I'll just connect you after ending the class today. Okay? No problem, Mataji. I Thank you so think we much. can end. Yes. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna.